नमस्कार, घड़ी में 2 बज चुके हैं। वक्त तो चला है दिन भर की तमाम उन बड़ी खबरों का जिसका करते हैं आप इंतजार। स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया के न्यूज रूम में, जहां पर हम आपको दिखाएंगे खबरें सीधे न्यूज रूम से। लेकिन आज के दिन सबसे पहले आपको लेकर चलेंगे जहां पर संसद की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। देखिए आप। A skill that is peculiar to that area. Festivities in our country are evolved on a very methodical mechanism, and that is when there is time available to the rural folk, the farmer, to enjoy. I am sure the sentiment of the House is that we must convey our best wishes to our countrymen so that they joyously enjoy these festivals and generate a spirit of togetherness and working in tandem and always believing in our nationalism. Honorable members, I was specific to the festivals on March 22. This house, I'm saying so, and all festivals, Ramzan, Navroz, and some that are coming in April, Today's Parsi New Year. Sir, make a suggestion. Your suggestion is more than welcome. I can indicate to the members of this august house. Perhaps many do not know. No, many do not know. Praful Patel and myself have been members of parliamentary board of NCP. We are old friends of long standing. Sir, out of courtesy, called by you out of courtesy. No. I greatly appreciate what the leader of opposition has indicated, that how many political parties have you traversed. I have benefited from enormous experience of towering giants in various political parties, starting with Chaudhry Devilal ji, Sharad Pawar ji, and I have been a member of the Congress party. And most of my friends are on left side. Janata Dal Chaudhry Devilal ji, we are towering giants in Janata Dal at that point of time. And I also have had the privilege of being a member of the largest party on the planet. So I have traversed, and in the process, honorable members, I have gathered experience. My involvement with these parties has been very impactful, and my not being associated with some parties may also be impactful. Let us come back to the business of the House. Further discussion on the working of Ministry of Skill Development and Entrepreneurship raised by Sri Sujit Kumar on 20th March 2023. Honorable members, please, leader of the opposition, honorable members, I call upon leader of the opposition, Sri Malika Arjun Khadge ji, Shri Malika Arjun Khadge ji, leader of the opposition.
सर, राहुल गांधी जी इस सदन के सदस्य नहीं है और उनके माफी मांगने का सवाल ही नहीं उठता। Stands adjourned to meet at 1100 hours on March 23, 2023. उस सदन के सदस्य आपके लोगों को कहीं तो राज्यसभा की कार्रवाई एक बार फिर से स्थगित हो गई। हर बार की तरह आज के दिन भी राज्यसभा हंगामे की भेंट चढ़ गई। लगातार उसी दिन की तरह से प्रदर्शन जारी है। हालांकि बजट सत्र का दूसरा चरण है। उम्मीदें हैं लोगों को कि चर्चाएं होंगी, लेकिन अभी तक चर्चाएं नहीं हो पाई जिसकी लोगों को उम्मीद है। चारुल, बिल्कुल, देखिए लगातार हंगामा चल रहा है सदन में। एक तरफ बीजेपी है जो लगातार कह रही है कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए लंदन में अपने बयान पर, तो दूसरी तरफ विपक्ष हंगामा कर रहा है। इस बीच एक बड़ी खबर, हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्यवाही को 23 मार्च सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें कि हंगामे की वजह से राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा है, लेकिन इस बीच लोकसभा की कार्यवाही जरूर इस समय चल रही है। और आपको बता दें कि हमने देखा है कि बजट सत्र का जो ये दूसरा चरण रहा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ नारेबाजी और हंगामे की स्थिति दोनों ही सदनों में बनी है, चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा हो। हमने एक रूटीन के तौर पे इसे दिखा है कि जैसे ही दोनों ही सदनों की कार्यवाही शुरू होती है, लोकसभा और राज्यसभा 11 बजे कार्यवाही शुरू हुई, कुछ ही मिनटों में दोनों सदनों की कार्यवाही खत्म हो जाती है, हंगामे की भेंट चढ़ जाती है और फिर 2 बजे तक के लिए कार्यवाही को स्थगित किया जाता है। फिर 2 बजे कार्यवाही शुरू होती है और 2 बजे एक बार फिर से हंगामा होता है, नारेबाजी होती है और सदन की कार्यवाही ठप हो जाती है। रवि सर्राफ हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। रवि, आज एक बार फिर से हम देखें तो वही स्थिति बनी कि सदन की कार्यवाही नहीं चल सकी। बिल्कुल अभिषेक, देखिए बहुत लाजमी था, क्योंकि जिस तरीके से टकराव बना हुआ है लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में। हालांकि आज देखिए स्पीकर ने प्रयास भी किया कि बातचीत किया जाए, पर विपक्ष की तरफ से वॉकआउट कर दिया गया इस बैठक का। तो विपक्ष ने बिल्कुल मूड बना लिया है कि सदन में अपनी बात जो है हंगामे के जरिए रखेंगे। और आज एक बहुत अलग देखने को मिला कि पार्लियामेंट बिल्डिंग के बाहर जो है बड़ा सा पोस्टर लटकाया गया अडानी समूह के खिलाफ में, जेपीसी के मांग के समर्थन में। टीएमसी भी आज प्रदर्शन करते हुए नजर आई। टीएमसी ने मार्च किया विजय चौक तक। और सत्ता पक्ष की तरफ से अगर आप देखें तो देखिए लगातार संबित पात्रा हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के सांसद हो, वो भी पहले दिन से माफीनामे के मांग पर अड़े हुए हैं कि राहुल गांधी। देखिए रवि, लौट कराऊंगा, फिलहाल लाइव तस्वीरें आ रही हैं। पीयूष गोयल क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं एक बार दर्शकों को। आज की मीटिंग का बॉयकॉट करना, ये बार बार जो चेयरमैन का अपमान करने की विपक्ष की कोशिश हो रही है, ये भी निंदनीय है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में विपक्ष आज सदन की गरिमा को ले आए। स्पीकर लोकसभा ने भी एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। उन्होंने आग्रह किया कि दोनों पक्ष, सत्ता दल और विपक्ष, दोनों अपने अपनी बातों को सदन के बाहर रखें और सदन की कार्रवाई को स्मूथली चलने दें। माननीय प्रहलाद जोशी जी, संसदीय कार्य मंत्री, ने स्पीकर का सम्मान करते हुए क्या जो निर्णय, जो आग्रह स्पीकर ने किया है उसको हम सभी ने मान्य करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस और उनके मित्र पक्ष डीएमके जैसे उसके लिए भी तैयार नहीं हुए और उन्होंने स्पीकर के भी आग्रह को, स्पीकर के अपील को, रिक्वेस्ट को नाकार कर दिया। मैं समझता हूं इससे स्पष्ट हो गया है कि विपक्ष, खासतौर पे कांग्रेस, डीएमके और जो उनके सहयोगी दल हैं, वो हाउस चलाने नहीं देना चाहते। उनकी मंशा कुछ और है। कोई सरकार पे आरोप ना होने के बावजूद वो गैर जिम्मेदार वक्तव्य और बेबुनियाद आरोपों के आधार पर
सदन को ना चलने देने की मंशा से आए हैं। शायद एक बहुत बढ़िया बजट माननीय वित्त मंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो पेश किया, जिससे पूरे देश और विश्व में आज भारत का बोलबाला है, भारत की प्रशंसा की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आज पूरा विश्व सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में देख रहा है। पूरे विश्व की आशाएं, अपेक्षाएं मोदी जी के नेतृत्व पे टिकी है कि वो विश्व की समस्याओं का भी समाधान निकाल पाएंगे। ऐसी परिस्थिति में विपक्ष उनके नेतृत्व के गुणगान जो हो रहे हैं देश में और पूरे विश्व में, जो 3 पूर्वांचल के राज्यों में भारतीय जनता पार्टी और हमारे सहयोगी दलों की सरकारें फिर से चुन के आई हैं, इन सब परिस्थितियों को देखते हुए शायद विपक्ष सदन की कार्रवाई में बाधाएं डाल के देश को गुमराह करने की जो कोशिश कर रहा है, हमारा विश्वास है कि देश इसको फिर एक बार विपक्ष को इसका पूरी तरीके से जवाब आने वाले दिनों में देगा। धन्यवाद। पार्लियामेंट पर चर्चाएं आखिर क्यों नहीं हो रही हैं? हालांकि जिस तरह से बजट पेश किया गया, बजट सत्र का दूसरा ये चरण है, लेकिन अभी तक लगातार ये हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सदन में राहुल गांधी की अगर बात करें तो लगातार माफी मांगो के नारे लग रहे हैं। विपक्ष बार बार यही कह रहा है कि अडानी मुद्दे पर जेपीसी की जांच हो, और तो और अडानी मुद्दे पर आखिर पीएम बोलते क्यों नहीं। सहयोगी रवि लगातार अपडेट दे रहे हैं। रवि, देखिए लगातार 2 ये मुद्दे हैं, अडानी एक तरफ, राहुल गांधी, जिस पर हंगामा जारी है। हालांकि सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि विपक्ष नहीं चाहता कि सदन चले, विपक्ष ये कह रहा है कि सत्ता पक्ष नहीं चाहता, लेकिन इन सबके बीच मुझे लगता है कि अगर गुमराह अगर कोई हो रही है तो वह देश की जनता। रवि, दीपक आवाज मिल पा रही है क्या आपको? दीपक, जिस तरह से सदन की कार्रवाई को लेकर देखिए लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, हमने यही जिक्र किया कि सदन की कार्रवाई स्थगित होने के पीछे आम जनता की आवाज जो है वो कहीं ना कहीं छिप जा रही है। बजट पर चर्चाएं होनी है, लोगों को इंतजार है, लेकिन लोकतंत्र के मंदिर में हर दिन हंगामा लगातार जारी है। दीपक जी बिल्कुल, और सागर इसी को लेकर कल न्यूज इंडिया ने वी मुरलीधर राव है जो केंद्रीय मंत्री है, उनसे जब पूछा गया था कि आखिर देश का पैसा इतना बर्बाद हो रहा है, सदन सुचारू रूप से नहीं चल रहा है, आप अलग बात कर रहे हैं, विपक्ष जो है वो लगातार कह रहा है कि जेपीसी की मांग कर रहा है, पर आखिर जो देश का जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई कैसे की जाएगी। तो न्यूज इंडिया के सवाल का जवाब उन्होंने देते हुए कहा कि देखिए कि विपक्ष की भी जिम्मेदारी है कि वो सुचारू रूप से सदन को चलाया जाए। लगातार अगर बात की जाए तो राहुल गांधी से माफी की बात की जाती है कि राहुल गांधी माफी मांगे। देखिए अभी थोड़ी देर पहले ही अगर बात की जाए तो पीयूष गोयल आए, उन्होंने कहा कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश का बजट पेश हुआ, उसके बाद लगातार सदन की इसको लेकर हम सुचारू रूप से चलने के लिए कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक कि अभी जो उपराष्ट्रपति उन्होंने एक बैठक की, उसमें सभी जो विपक्षी दल है उनके साथ बैठक की, वो भी बेनतीजा रहा। उसके बाद लोकसभा स्पीकर ने सभी फ्लोर लीडर के साथ बैठक की, पर कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार जो है सदन नहीं चल रहा है, इसका गुनाहगार कौन है? आखिर कब तक इस तरीके से चलता रहेगा? ये तो नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ विपक्ष जिम्मेदार है, क्योंकि हमने ये भी देखा कि बीजेपी के जो सांसद हैं वो भी नारेबाजी कर रहे हैं कि राहुल गांधी माफी मांगे, लेकिन इन सब के बीच 6 तारीख को सत्र खत्म होना है। आखिर कैसे जो तमाम विधेयक है उन पर काम होगा, कैसे बजट पर आगे की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो पाएगी अगर हर बार सिर्फ और सिर्फ हंगामे की वजह से सदन स्थगित होगा? जी बिल्कुल, यही लगातार सवाल है कि जिस तरीके से अगर बात की जाए, चाहे पक्ष हो चाहे चलिए तो दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, सवाल यही है कि आखिर लगातार हम देख रहे हैं कि सदन जो है वो स्थगित हो रहा है, कार्रवाई आखिर कैसे होगी? बिल्कुल, देखिए अभी जिस तरीके से बात हुई कि लोकसभा स्पीकर ने अपने रूम में बैठक बुलाई थी, उसके बाद कहा कि अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझसे आके बात कीजिए, चाहे वो पक्ष की बात हो चाहे विपक्ष की बात हो। सदन जब तक चलेगा नहीं तब तक आगे रणनीति कैसे बनेगी, आखिर देश हमारा किस तरीके से आगे बढ़ेगा। लगातार अगर बात की जाए तो पीयूष गोयल कह रहे थे कि देश में एक अच्छा बजट आया, उसको लेकर चर्चा होनी थी। ऐसे कई विधायक हैं जो पास होना था,
पर जिस तरीके से लगातार अगर बात की जाए तो जो विपक्ष है वो जेपी सिंह की मांग कर रहा है। और देखिए पहली बार देखा गया कि फर्स्ट फ्लोर पर सदन के चढ़कर और जेपी सिंह की मांग को लेकर एक बड़ा सा बैनर लगाया जा रहा था। तो वो लगातार ट्विटर कह रहे थे कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये सदन में इस तरीके की पहले इसमें एक और चीज ये है कि सदन में हमने अमूमन देखा है कि बजट सत्र जब होता है तो इस तरीके का गतिरोध बहुत कम ही हमने देखा है। क्या इस बार का बजट सत्र अगर हम देखें तो सबसे भिन्न रहा है और कहां कमियां रह गई, चाहे हम सत्ता पक्ष की बात कर लें या विपक्ष की बात कर लें, कमी कहां रह गई कि इस बार का बजट सत्र का दूसरा चरण जो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ हंगामे की भेंट चढ़ा है। कार्यवाही के अगर हम घंटे निकालें तो बहुत कम रहे। जी बिल्कुल, इस तरीके से अभिषेक आपने बात कहा। और अगर पूरे कार्रवाई की अगर जो बजट के सेशन का जो दूसरा चरण है उसमें अगर बात की जाए तो 10 घंटे भी अगर एक अमूमन देखा जाए तो 10 घंटे भी सदन नहीं चल पा रहा है और ये दुर्भाग्यपूर्ण है, चाहे वो विपक्ष की बात हो चाहे वो पक्ष की बात हो। लगातार जिस तरीके से अगर इससे पहले आज तक कभी नहीं देखा गया होगा कि इस सिर्फ 10 घंटे पूरा अगर कार्यकाल की बात की जाए तो लगातार 10 घंटे भी अगर सदन नहीं चल पा रहा है और ये दुर्भाग्य। बिल्कुल दीपक, तो ये दुर्भाग्य की बात है कि सदन की कार्यवाही 10 घंटे भी नहीं चल पा रही है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अब देखिए कारण क्या रहा है। एक तो राहुल गांधी का लंदन में दिया गया बयान जिसकी वजह से सदन में हंगामा हुआ है और दूसरी तरफ अडानी के मामले पे जेपीसी की जांच की मांग जो है वो लगातार की जा रही है। इसी मुद्दे को लेकर के मल्लिकार्जुन खड़गे और अनुराग ठाकुर ने क्या कहा है वो आपको सुनाते हैं। क्या ऐसी बातें एक के बाद दूसरी राहुल गांधी जी ने देश के खिलाफ नहीं की? महिला की बात उन्होंने की कि उनके साथ अत्याचार हुआ, अपराध हुआ, लेकिन जानकारी नहीं दी। हाथरस करते नहीं थकते थे राहुल गांधी, लेकिन जब दिल्ली पुलिस जानकारी लेने पहुंची तो हाथ पैर फूल गए। तो राहुल गांधी जी तब झूठ बोल रहे थे कि अब सच छिपा रहे हैं। क्या छिपाने का कांग्रेस प्रयास कर रही है या केवल खबरों में रहने के लिए कुछ भी अनाप शनाप बोलते हैं? और वैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री ये चोर मुसेरे भाई हो गए आजकल, भ्रष्टाचार करने वाले एक साथ हो गए आजकल, संसद भी नहीं चलने देते हैं और अपने गुनाहों को छिपाने के लिए, सत्य को छिपाने के लिए प्रधानमंत्री पर भी अनाप शनाप। ये देखो, ये माफी मांगने का तो सवाल नहीं है, बार बार वो पूछते रहेंगे, हम उसको नकारते रहेंगे, उसमें कोई माने नहीं है। ये होना बोल के इशू को डाइवर्ट करने के लिए कर रहे हैं। तो पहले तो देखिए हमारे एम्बेसी पे हमले हो रहे, उसके बारे में उनकी कोई बात नहीं है। उसके बाद जो यहाँ के बैंकों से पैसे उठा लेके जा रहे हैं, पहले तो सरकार से ये पूछेंगे, पहले तुम्हारी सफाई इसके बारे में दो, उसके बाद में बाकी के इश्यू। और माफी मांगने का तो कोई सवाल ही नहीं। तो संसद में संग्राम लगातार जमकर जारी है। ऐसे में कहा यही जा रहा है कि आखिर संसद में कार्रवाई कब सुचारू रूप से चलेगी, क्योंकि संसद की अगर बात करें तो बजट सत्र का दूसरा ये चरण है। ऐसे में चर्चाओं के नाम पर अभी तक सब कुछ वहां पर शून्य ही दिखाई दिया है।